Greetings to you all in the matchless name of our Lord and Savior, Jesus Christ. This is a privilege and opportunity which we have obtained from the Lord, that we have enacted in this play when Jesus was born. Indeed, all participants have worked very hard. They have labored. But when we labor for the Lord, we receive blessings from the heaven. Before we proceed, let us look to God in prayer. God, our Heavenly Father, from the moment of creation, you have never ceased showing your love for us. Even when we turned away from you, you did not abandon us to the darkness of sin and death. Indeed, it was when our need was greatest that you sent your Son, Redeemer, Jesus, to be born of the Virgin Mary. Bless us as we look upon this nativity scene, this enactment, and this manger. May it remind us of the humble birth of Jesus and raise our minds to contemplate the awesome mystery of God made flesh. Let this holy season fill us with hope that we might join Him in the eternal kingdom of peace in heaven. Through Christ, our Lord and Savior, who lives and reigns forever and ever. Amen. Greetings from Ingraham Institute. It's a great moment for me to say something about the Christmas as I perceive. Christmas has got a different connotation in life. I remember when I was a child, Christmas was a season where I used to look forward, because that was the time I used to look forward to merrymaking, going to the jungle, having a beautiful combination of fauna and flora where I used to enjoy, coming back, having a Christmas tree, getting the presents, and that was Christmas for me. But as I grew, the total connotation changed. And I came to know that Christmas is not the only merrymaking. Christmas is not a place or a time or a date where we just enjoy and forget about it.
it's a very big commitment. As the Bible says, it is the peace, it is the joy and the love which God gave us on this day. But as far as I understand, if this peace, joy and love is not there in our heart, if it is not born in our heart, Christmas has got no meaning. And that's the reason that when I came to know and when I experienced this thing in my life, Christmas became more relevant. Today we are enjoying it. The 25th December is a day when we all assemble because it's a traditional. It is the day when we get together and we enjoy, eat, make cakes and other things, but we forget about it. That in reality, anywhere Christ has been born again in our heart, and if it is not, then it is a reminder for us that He should take place. We have been, due to COVID-19, we have been very badly affected. I know so many have lost their dear ones, but we have got the hope and the reconciliation which has been propagated through the hope is there in front of us. The birth of Christ is a joyful moment for us because He brought in good news, and that good news is reconciliation with our Father. The connectivity which we lost in early days, He came for that, and He gave us the opportunity to reconcile with our Father so that we will be able to achieve that everlasting life. I once again enjoy this period. I enjoy this moment. I enjoy this weather, and at the same time I enjoy the fellowship of Jesus Christ with me, which I got, and I am so proud of it. I pray for everybody that everybody should enjoy and have the good news, that the good news of salvation, that whatever, whenever, wherever we will be, if we are joined, if we are united with Jesus, there is a hope for us to have an everlasting life, and that's what Christmas reminds us. So once again, thank you so much for giving me this opportunity. May God bless each one of you, and this Christmas should bring a new life, a new time, a new thinking, new perception in the life of all of us. God bless. सुनो आना जरा, देखिए क्या कर रहे हो। अरे क्या हो गया? अरे बाबा इतना सारा काम वाम तो ठीक है हो गया, पर लेकिन आगे भी तो काम करने हैं बहुत सारे। पता है क्रिसमस है, बहुत सारे काम पड़े हैं, कैसे होंगे यार। अरे भाई मैं भी तो काम कर रहा हूँ। क्या तुमने सारे कामों की लिस्ट बना ली है? हाँ मैंने लिस्ट तो बना ली, बस देख लो थोड़ा सा फाइनलाइज करा लो उसको। देखो ऐसा है, सबसे पहले हम लोगों को बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं और उसके बाद उनकी गिफ्ट सेलेक्ट करनी है। तुमने अब बताओ क्या क्या कर लिया है? भाई देखो मैंने वैसे तो सारा लिस्ट आउट कर लिया है। आज पहले बैठ जाओ। देखो लिस्ट आउट तो मैंने कर लिया है, पर एक बार देख लो कुछ रहा तो नहीं है, ठीक है ना। रही बच्चों के कपड़ों की बात, शॉपिंग की बात, भाई बाहर है कोरोना और मुझे ये नहीं मालूम कौन बंदा कैसा इन्फेक्टेड है, दुकान पे जा रहे कौन कैसा दुकान वाला है। मेरे को तो बेटर सबसे बड़ा ऑप्शन ये लगता है, लेट्स फाइंड आउट ऑन द ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, चीज़ भी एक बार देख लेते हैं इस बार कैसी आ रही है और बेस्ट है वो। हाँ ये तुम्हारा तरीका बिल्कुल सही है, क्योंकि बाहर इतना ये पेंडेमिक चल रहा है, इतनी बीमारी फैल रही, तो हमें घर में बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग करना ही बेस्ट ऑप्शन लगता है। पर एक बात मुझको ये बताओ, तुमने मम्मी के लिए क्या सोचा है? मम्मी के लिए तो ऑब्वियसली शी इज अ पार्ट ऑफ द फैमिली, लेना तो है, सबके लिए ले रहे हैं, छोटे मोटे तो सबके लिए ले रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं, मम्मी के लिए ले लेंगे, स्वेटर लेंगे या शॉल लेंगे, सर्दी है। हाँ ये बात तो तुम्हारी बहुत सही है कि बहुत ठंड है, तो मम्मी के लिए शॉल और स्वेटर तो बहुत ज़्यादा जरूरी है।
पापा पापा, मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए रेस्टोरेंट्स में जाऊंगा और तो और जीन्स जैकेट शूज़ भी लूंगा। और पापा पापा मेरा क्या? मुझे तो वो वाली फ्रॉक चाहिए, मैं तभी चढ़ जाऊंगी। और पापा पापा मुझे डॉल और एक डॉल हाउस चाहिए। देखो बेटा, अभी चल रहा है कोरोना, ठीक है ना, तो बाहर जाने की तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और रही बात आपकी चीज़ों की, वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, पर फिर भी ये सोचो कि इतनी परेशानी में भी कैसे कैसे इंतजाम किए जा रहे हैं। ठीक है बेटा, वी आर गेटिंग एवरीथिंग। आपको सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है ना? यू आर गेटिंग द ड्रेस, यू आर ऑल्सो गेटिंग द ड्रेस, आपको जीन्स मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। बेटा वी शुड नॉट फॉरगेट वन थिंग, खुदा को धन्यवाद करना ना भूलें, क्योंकि हर बात में धन्यवाद करना हमें ज़रूरी है। एंड जब हम धन्यवाद करेंगे तो चीज़ें हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। आप लोग हमेशा यही करते हो, मैं जा रहा हूँ। आप लोग हमेशा ऐसे करते हो, मैं भी जा रही हूँ। चलो बेटा जाओ खेलो। दादी दादी, ये चटनी में छोटा बेबी कौन लेटा हुआ है? ये जीसस हैं बेटा, जिनका जन्मदिन मनाने की हम तैयारी कर रहे हैं। दादी दादी, हमने आपके लिए गिफ्ट्स लिए, मम्मी के लिए गिफ्ट्स लिए और पापा के लिए गिफ्ट्स लिए, लेकिन हमने इनके लिए क्यों नहीं गिफ्ट्स लिए? जब संसार में बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया, तब परमेश्वर ने मनुष्य जाति के उद्धार के लिए एक योजना बनाई। उसने अपना एकलौता पुत्र इस संसार के लिए दे दिया। परमेश्वर ने ये बहुमूल्य वरदान इस संसार के लिए दिया, उसके लिए हमें उनके धन्यवाद होना चाहिए। और हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? सिर्फ यही कि उसके बताए मार्गों पर चलें और उसकी आज्ञा का पालन करें। दादी दादी, मुझे जीसस की जन्म की कहानी सुनाओ ना। ठीक। शांति के राजकुमार, प्रभु यीशु का जन्म इस प्रकार हुआ कि 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। ये कैसा अभिवादन है? हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा के लिए राज्य करेगा, और उसके राज का कभी अंत ना होगा। यह क्यों कर होगा? मैं तो उस पुरुष को जानती भी नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन अनुसार ही हो। यह सब परमेश्वर के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने यशायाह नबी के द्वारा कहा कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। जब प्रभु यीशु की माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो यूसुफ, जो धर्मी मनुष्य था, चुपचाप से उसे त्याग देने की मंशा की। हे परमेश्वर, मेरी सारी चिंताएं मुझसे दूर कर। आज पूरे दिन तूने मेरी रक्षा और सहायता की है, इसलिए तेरा धन्यवाद हो। आमीन। आज काम कर कर के बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। जब वह नींद में ये बातें सोच रहा था, तब प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है।
वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये कैसा अद्भुत स्वप्न था। मालूम होता है कि परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा मुझसे बात की है। अगर परमेश्वर की यही इच्छा है तो मैं मरियम को नहीं त्यागूंगा, वरन उसे अपने घर ले आऊंगा। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से ये आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियस सूर्या का हाकिम था। सुनो 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 राजा अगस्तुस कैसर की ओर से सुनो 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 निकला एक फरमान, अपने अपने नगर की ओर जाएं और अपना अपना नाम अपने नगर की ओर लिखवाएं। सुनो 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 सुनो। सलाम सलाम भाई सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डगलस है। डगलस, कहाँ से आए हो? मैं इजराइल से आया हूँ सर। इजराइल से आए हो, ठीक है। आपका नाम दर्ज हो चुका है, आप जा सकते हैं। सो यूसुफ भी कि वह दाऊद के वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। सलाम भाई। सलाम भाई सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम यूसुफ है। यूसुफ, और ये मेरी एक मिनट रुक जाओ भाई साहब। हाँ, और ये मेरी पत्नी मरियम। अच्छा मरियम, पत्नी मरियम। आप लोग कहाँ से आए? जी हम यहूदिया से आए हैं। यहूदिया से? यहूदिया, ठीक है। आपका नाम दर्ज हो चुका है, आप लोग जा सकते हैं। जी शुक्रिया। वाह भाई वाह, सारी सराय भर चुकी है, बस एक कमरा खाली है। देखे कौन खुशकिस्मत आता है यहाँ पे। अरे मोटू आ गया साहब, आया। अरे मोटू कहाँ खा खा के मोटा हो रहा है, काम दाम कुछ करता आ गया साहब, आया। बताओ कहाँ था अब तक? अरे साहब काम कर रहा था अपना। अच्छा देख बेटा, सराय सारी भर चुकी है। हाँ साहब। ठीक है ना, एक कमरा बाकी है। हाँ साहब, एक ही अब कमरा देखते बचा है कौन हमारे पास। खुशकिस्मत आता है। जब तक तू मेरी सेवा कर, हाथ पैर अच्छा दबा, साहब, चल लो ठीक से दबा। दबा रहा अरे हूँ ठीक से साहब। दबा, जान नहीं है क्या? ऐसे पोले पोले हाथों से दबा रहा है भाई। ये वाला हाथ दबा पहले, दुख है रहा, बहुत बुढ़ापा है भैया मेरा। वो गला दबाया क्या? अरे नहीं साहब, नहीं साहब, गला का दबा रहा हूँ। मार के सराय पे कब्जा करना चाहता? अरे नहीं 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 नहीं, अरे हाथ ही दबा रहा हूँ मैं तो। सराय पे कब्जा करना मांग रहा है गला दबा के। अरे ना साहब, है पैर दबा, पैर। अच्छा साहब। देख कौन आया। कौन आ गया? देखता हूँ साहब। उठा नहीं जा रहा तेरे से, जा जा रहा हूँ साहब, देख कर आ रहा हूँ। हिला भी नहीं जा रहा इससे तो। हाँ जी। जी मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे रहने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। रुको यार, देखता हूँ मैं भी, देख के बताता हूँ मैं, ठीक है? 2 मिनट रुको, बताता हूँ देख के। अरे कहाँ मर गया मोटू? आ गया साहब, आ गया। नाम वैसा काम। अरे आ गया साहब, काम कर रहा था। हाँ अरे साहब, ये कुछ लोग हैं सराय में जगह मांग रहे हैं। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा नाम लालता है, ये मेरी पत्नी है, मुझे रहने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। आखिरी कमरा भैया, बहुत किस्मत वाले हो। ये मिल जाए तो बहुत अच्छी बात। तुम्हें कमरा, आखिरी कमरा है, तुम्हें मिल रहा है। इन्हें कमरा दिखा दे। अच्छा साहब, और साफ सफाई कर देना पहले। ठीक है साहब, ठीक है साहब। धन्यवाद साहब। आ जाओ, लो जल्दी जा, आपका लेके जाएगा। और ये कमरा। अच्छा ठीक है। देखो बेटा। हाँ साहब। सराय सारी भर चुकी है, अब किसी को रखने की जगह नहीं है हमारे पास। ठीक है सर। ठीक है,
जो भी आए उन्हें बाहर से मना कर देना। ठीक है साहब। मेरे पास मत लाना, परेशान कर देते हैं बहुत लोग। ठीक है साहब, बिल्कुल साहब। उन्हें बाहर के बाहर मना कर देना। जा। ठीक है साहब। ठीक है, ठीक है साहब। और कितनी दूर चलना है? मैं थक गई। थोड़ी हिम्मत रखो, मैं जगह ढूंढ रहा हूँ। हाँ जी, क्या काम? जी मुझे सराय में रहने के लिए जगह चाहिए। साहब सराय में जगह नहीं है बिल्कुल भी। भाई साहब थोड़ी दया करें, मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है। जगह बोल दिया ना। भाई साहब थोड़ी सी दया कर दीजिए। भाई साहब मुझे मालिक कहाँ घुसे जा रहे हो यार? अरे देखो साहब। महोदय, क्या आप ही सराय के मालिक हैं? मैंने तुझसे कहा था कि अब किसी को अंदर मत आने देना। साहब मैंने तो मना करा था। सराय भर चुकी है। महोदय, हम पर दया करें, मेरी बीवी गर्भवती है और उसको रात गुजारने के लिए आराम करने की सख्त आवश्यकता है। अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इनकी पत्नी की तबीयत खराब है ना? अच्छा, कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे। जा देख, क्या कुछ कर सकते हैं हम इनके लिए? मैं देख के बताता हूँ साहब। जा देख के आ जा, जल्दी जा भाई, देखते हैं क्या हो सकता है। मैंने उन्हें भेजा है, आप इंतजार करें। जी आपका बहुत धन्यवाद हो। मालिक कोई जगह वगह नहीं है बिल्कुल भी अब। अरे कहाँ जाएंगे ये लोग? इनकी पत्नी की भी तबीयत खराब है। ज्यादातर तरफ आ रहा है ना, तो केवल गौशाला में जगह खाली है, वहाँ इंतजाम करा दो। तो इन्हें गौशाला में ले जा और साफ सफाई कर दे, इनके रहने लायक बना दे। मैं कर देता हूँ बिल्कुल। मैं इस मेहरबानी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जाओ इनको गौशाला ले जाओ। आओ साहब। देखो भैया, यही है जगह जहां पे मैं तुम्हें रुका सकता हूं। देख लो सही से। देख लिया भैया, यही है बस, इससे ज्यादा नहीं है हमारे पास। अब सही से देखभाल लो जगह। आपका इस जगह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है भैया, मैं मालिक से बात कर लेता हूँ फिर। ठीक है भाई। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और उसका तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। अरे दद्दू, आज तो बहुत ठंड है। हाँ बेटा, आज तो बहुत ठंड है। हड्डियाँ भी कड़कड़ा रही है। क्या करें, चारा तो मिलता नहीं तो दूर आना पड़ता है। अरे बेटा लकड़ियाँ ढूंढ के लाओ और डाल। डालो भैया, मुझे जा रही है। अरे नहीं, अरे बेटा गिनती कर ले जा। दद्दू की बात माना कर। अरे सुन ले बेटा, आज नहीं सुन रहा। देख कम नहीं होनी चाहिए। अरे सब कुछ सही है दद्दू। आज तो सही है। हाँ सही कह रहा है तू। आज कह नौकी रहा रात है ये कुछ। तारा क्या है? हाँ बड़ा चमक रहा था। ये तारा। अरे देखो तो सही कितनी जोर से चमक रहा है। अरे ये भैया, ये कैसी रोशनी है भैया? अरे कितनी तेज रोशनी है। मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े ही आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सभी लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। इस बात का तुम्हारे लिए यह चिन्ह होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। कैसी अद्भुत बात थी भाई। है सकदूतों को पहली बार हमने इतना पास से देखा। हाँ भाई हाँ। बहुत तो ही बड़ी खुशखबरी की बात है भाई। हाँ भाई हाँ। आओ हम चलते हैं। अरे अब हम क्या ले जाएंगे फिर? कहाँ लेके जाएंगे हम भाई? अरे हाँ, ये तो सोचने की बात है। हमारे पास बस भेड़ ही है जो ले जाने के लिए। अरे हाँ, हम अपने राजा के लिए भेड़ ही ले जाते हैं। भेड़ ले जाएंगे, भेड़ ले जाएंगे। चलो। जब यूसुफ और उसकी पत्नी मरियम सराय में थे तो मरियम के जन्म के दिन पूरे हुए। उसने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी।
पूरब देश से कुछ ज्योतिषी इस अद्भुत तारे का पीछा करते हुए राजा की खोज में निकल पड़े। हम तीन राजा पूरब के हैं, नजरें भी सब वही की। ये वही तारा है। हाँ ठीक है, मेरे शास्त्र में ऐसा ही लिखा है, ये वही तारा है। ठीक है। ये वही तारा है जिसका जिक्र शास्त्रों में दिया गया है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये वही तारा है। सलाम भाई, सलाम। सलाम भाई, सलाम। भाई मैं भारत देश से आया हूँ और मेरा नाम गैस्पर है। मैं इस तारे का पीछा करते करते यहाँ तक आया हूँ क्योंकि ये तारा इस बात का संकेत है कि किसी महान बालक राजा का जन्म हुआ है। हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा है। जी भाई, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और मेरा नाम बेलशेजर है। मैं अरब देश से इस तारे का पीछा करते करते यहाँ तक आया हूँ, जो इस बात का संकेत है कि किसी महान बालक राजा का जन्म होने वाला है। जी भाई, मैं मेल्कियोर हूँ। मैं फारस देश से आया हूँ। मैं भी इसी तारे का पीछा करते हुए यहाँ आया हूँ। मेरे शास्त्रों में भी यही लिखा है कि किसी बालक राजा का जन्म यहीं हुआ है। हाँ भाई, आप बिल्कुल ठीक फरमाते हैं। ये वास्तव में बिल्कुल सही बात है कि हम तीनों के तीनों अलग अलग देशों से इस तारे का पीछा करते आए हैं। भाइयों, एक बालक राजा का जन्म हुआ है और ये जरूरी है कि किसी राजा के महल में ही उसका जन्म हुआ हो। हाँ भाई, चलो वहाँ चलते हैं। चलिए भाई। चलिए भाई। हैरिए, आपको किससे मिलना है और आपको क्या काम? हम इस तारे का पीछा करते यहाँ तक आए हैं और हमें राजा हेरोदेस से मिलना है क्योंकि ये तारा इस बात का हमें दर्शाता है कि किसी महान बालक राजा का जन्म हुआ है। आप यहीं रुकिए, हम महाराज से अभी पूछ के आते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, 3 महापुरुष आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों? वो किसी तारे के बारे में जिक्र कर रहे थे। तारे? उन 3 महापुरुष को दरबार में पेश कर दीजिए। जो आ गया। महाराज की जय हो। आइए महापुरुषों, अपना अपना स्थान ग्रहण करिए। शुक्रिया महाराज। आप लोग यहाँ आने का मकसद क्या है? महाराज, हम 3 मजूसी पूरब देश से आए हैं और इस तारे का पीछा करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। महाराज, ये तारा हमें इस बात का संकेत देता है कि किसी महान बालक राजा का जन्म हुआ है। वो कहाँ है? हम उसको दंडवत करने आए हैं। महाराज, हम इस तारे का पीछा करते हुए यहाँ तक आए हैं, जो इस बात का संकेत है कि किसी महान बालक राजा का जन्म हुआ है। आप हमें उसका पता बता दीजिए जिससे हम उसको दंडवत कर सकें। बैठिए। महाराज, इसी तारे को हम देखते हुए यहाँ आए हैं। हमारे शास्त्रों में कुछ इसी प्रकार लिखा है कि किसी बालक राजा का जन्म यहाँ हुआ है। बालक राजा? जी महाराज, ऐसा ही बता रहे हैं ये लोग। हमें तो इसका बारे में कुछ नहीं पता है। हम अपना शास्त्रियों को बुला के पता कर लेते हैं। मंत्री जी। जी महाराज। इनको विश्राम करने का इंतजाम कर दीजिए। जो आज्ञा महाराज। आप लोग अभी जा सकते हैं। शुक्रिया महाराज। शुक्रिया महाराज। शुक्रिया महाराज। महामंत्री, राजशास्त्री को बुलवा लिया जाए। जो आज्ञा महाराज। जी मंत्री जी। राजशास्त्री को
दरबार में पेश किया जाए। जो आज्ञा। महाराज की जय हो। क्या आज्ञा है महाराज? आइए राजशास्त्री, अपना स्थान ग्रहण करिए। धन्यवाद महाराज। राजशास्त्री जी, आज 3 महापुरुष आए हैं। वो कुछ बालक राजा और तारे का कुछ बता रहे थे। आप अपना शास्त्रों से देखकर बताइए, ऐसा कुछ हुआ है? जो आज्ञा महाराज, मैं अपने शास्त्रों से देखकर आपको जल्द सूचना देता हूं। महाराज, ये सही फरमाते हैं। महाराज, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्य तकाओं के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। और ये तारा इसी चीज का प्रतीक है, और मेरी पुस्तक भी यही कहती है महाराज। इसका मतलब वो 3 महापुरुष लोग सही कह रहे थे। जी महाराज। जी महाराज। मंत्री जी, वो 3 महापुरुष को दरबार में पेश कर दीजिए। जो आज्ञा महाराज। आप लोग बिल्कुल सही कहते थे। हमारा राजशास्त्री से भी बात हुआ, वो ये कह रहे थे कोई बालक राजा जन्म हुआ है। आप जाके अपना प्रणाम कर लीजिए, फिर आके मुझे बताना, ताकि मैं भी जाके अपना प्रणाम कर सकूं। आप जा सकते हैं। महामंत्री, जी महाराज। वो तीनों पुरुष बहुत दिन हो गया, वापस क्यों नहीं आए? ऐसा प्रतीत होता है महाराज कि वो बिना बताए ही अपने देश को वापस चले गए। अब वो बालक राजा को कहां जाके ढूंढेंगे हम? बालक राजा, ये मैं कहां ढूंढूंगा उसको? महामंत्री, जितना 2 साल का बच्चे है उनको सर कलम करो, मैं खली को फूल बनने से पहले मसल दूंगा। सेनापति, हुक्म का तामील हो। जो आज्ञा महाराज। लेफ्ट में देखते रहिए, राइट में देखो, फिर से लेफ्ट में। पूरब देश से कुछ ज्योतिषी इस बालक राजा को अर्पित करने के लिए सोना, मुर तथा लोबान लेकर यहूदिया के यरूशलेम नगर को गए। सब वहीं की है, सफर दूर का पीछा नूर का करके हम आए हैं। आए रात के तारे आजुबा, शाही तारे खुशनुमा, आगे चल कर दिखा कर काबिल नूर तक पहुंचा। भाई चलिए, चर्च खत्म हो गया और आज लोग कम थे पर बहुत अच्छा मैसेज दिया भाई साहब ने। बहुत अच्छा था, चर्च भी बहुत अच्छा था, इट वाज वेरी गुड और बहुत अच्छी सर्विस हुई। हाँ। मजा आ गया। बेटा आप लोग क्या कर रहे हो? हम गेम खेल रहे हैं। अच्छा, अरे कोई आया, देखो। अरे कौन है? अरे सलाम भाभी, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। और बताइए भैया क्या कर रहे हैं? बस चर्च से अभी हम लोग बस चर्च से आए हैं। आप लोग का कैसा रहा? आइए भैया, बहुत अच्छा रहा।
बैठिए बैठिए। भैया केक तो खिलवा दो। अरे पहले बैठ, जरा सबके लिए खाने और पीने का इंतजाम करो। हाँ चलो। बेटा थोड़ा मम्मी की मदद कर दो बाबू। पापा मैं गेम खेल रही हूँ। अरे मम्मी कुछ खाने को दे दो। हाँ मम्मी कुछ खाने को तो लाओ। अरे लाते हैं। और भैया काम कैसा चल रहा है बताइए। बहुत बढ़िया। और आप बताइए आपका कैसा चल रहा है? हेल्प करवा के आती हूँ। भैया बस काम का तो लॉकडाउन के बाद थोड़ा ऐसे ही हो गया है, थोड़ा मद्दा है काम। पूरा प्लान ही था, प्लान तो और ज्यादा थे, बट ये है कोरोना की वजह से कहीं बाहर जा नहीं सकते, तो थोड़ा अपने लोगों में 2-4 लोगों में बस मिलिए। हाँ ये बहुत अच्छा किया आप लोग आए, हमें बहुत अच्छा लगा। यीशु मसीह का जन्म 2020 वर्ष पूर्व हुआ, लेकिन आज भी हम उसके जन्म को एक बालक जो कि चरनी में लिपटा हुआ है इस रूप में देखते हैं और मनाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि अब वो बालक के रूप में नहीं, जबकि उसका द्वितीय आगमन होना है, वो एक न्यायी के रूप में आएगा। वो रूप जिसके अंदर ना तो दया, ना अनुग्रह और ना प्रेम होगा, बल्कि एक न्यायी के तौर पर उसका आना होगा। यीशु मसीह आया ताकि मनुष्य जाति पर दंड की आज्ञा ना हो। यीशु मसीह आया अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, ताकि वो संबंध जो कभी बागे अदन में टूट गया था, वो संबंध दोबारा यीशु मसीह के द्वारा जुड़ जाए। यीशु मसीह वचन है और वचन परमेश्वर है, और यही वचन देहधारी भी हुआ। यूहन्ना में यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है, सुनता है और उन पर चलता है। लेकिन आज क्रिसमस पर्व एक पर्व के तौर पे जाना जाता है, जिसमें मिलना जुलना, खाना पीना। हम देखते हैं मसीह परिवार तो है लेकिन मसीह नहीं है। मसीह परिवार तो है लेकिन वो आज्ञाएं, वो शिक्षाएं नहीं हैं। और यही वजह है कि इस सदी के बच्चे बिगड़ते जाते हैं। हम देखते हैं कि कैसे अपने माता पिता का निरादर करते हैं। मनुष्य जाति जबकि मोबाइल वर्ल्ड में खो चुकी है, तो परमेश्वर ने ऐसे समय पर एक ऐसी बीमारी भेजी कि सब कुछ इस छोटे से मोबाइल में सिमट के रह गया। ये वक्त है सोचने का कि हम किस पर्व को मनाते हैं। क्या इस पर्व से उस प्रभु यीशु मसीह को हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं? इस नेटिविटी के माध्यम से जरूर हमने उस जन्मोत्सव को दिखाया, मनाया, बनाया, लेकिन हमने ये भी देखा यीशु मसीह का आना हो सकता है बहुत से लोगों के लिए खुशी का पल रहा हो, लेकिन बहुत से लोगों के लिए मातम का पर्व भी रहा। और जब दूसरी बार आएगा तब भी हमें इस बात को सोचने की ज़रूरत है कि बहुत से लोग तो खुश होंगे लेकिन बहुत सी जगहों पर मातम होगा। यीशु कहता है मैं जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया। मैं जीवन की रोटी हूँ। लेकिन अफसोस मसीह परिवार उस यीशु को जानते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, लेकिन अपने पर्वों में इतना व्यस्त हो गए हैं कि कहीं ना कहीं उसका असली मूल्यांकन भूल चुके हैं, उसका असली मूल्य भूल चुके हैं। ये वक्त है, ये ऐसा समय है कि हमें फिर से सोचना है अगली पीढ़ी कहाँ जा रही है, हम अगली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं। वो तो वही करेंगे जो वो इस युग में अपने माता पिता को करते हुए देखते हैं। ये ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। कहीं ऐसा ना हो कि वो न्यायी के तौर पर आए और फिर वो हमसे कहे ना ये ठंडे हैं और ना ये गर्म हैं,
क्योंकि ये गुनगुने हैं तो मैं इनको उगलने पर हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, सही मार्ग बताएं और अपने को समझने की सामर्थ्य, बुद्धि और शक्ति दें। आप सभी को बड़े दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।